महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, करोड़ों दलितोના મુક્તિદાતા પરમ પૂજ્ય ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને અભિવાદન કરી આજે રાપર ખાતે સદભાવના સંમેલનમાં આવેલા સૌ ભાઈઓ અને બહેનોનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ખૂબ ટૂંક સમયની અંદર સૌને જણાવ્યું વોટ્સઅપ અને ફેસબુકના માધ્યમથી તેમ છતાંય આપ સૌ પધાર્યા હોય. કાર્યક્રમમાં ગઈકાલે આજે સવારે આપણે 11 વાગે કરવાનો હતો, પરંતુ આટલું વાતાવરણ એવું હતું કે સાહેબની ફ્લાઇટ સવારે કેન્સલ થઈ અને એમ છતાં પણ સાહેબ ફરીથી બીજી ફ્લાઇટ લઈ અને અહીંયા આવ્યા. અને આપ સૌ રાપરના દૂર દૂર ગામડાઓથી આવેલા હો સવારથી અને બેઠા હો સાહેબની રાહ જોઈને, એ માટે પણ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે જે આપણે કાર્યક્રમ કર્યો એ કાર્યક્રમનો હેતુ એ હતો કે જેમ આપણે સૌ જાણીએ છીએ कि भारत सरकार આવનારું જે 15મી ઓગસ્ટે स्वतंत्रता दिवस है, ये स्वतंत्रता दिवस में भारत का आजादी का अमृत महोत्सव ना नाम थी भारत का आजादी ना अमृत महोत्सव ना नाम थी उजवी रही है. आजादी ने 75 वर्ष पूरा થયા. 12મી માર્ચ 2021 ના ગાંધીજીએ અમદાવાદના સાબરમતી જ્યાંથી દાંડી મૂર્તિ શરૂઆત કરી ત્યાંથી આપણા લોકપ્રિય વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી અને આઝાદીનો 75 વર્ષ પ્રમાણે આવનારા 75 સપ્તાહ એટલે કે 15મી ઓગસ્ટ 2023 માં 78માં ભારતના સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે આ કાર્યક્રમ પૂરો થશે. 3 વર્ષ સુધી સતત કાર્યક્રમ ચાલશે અને આ કાર્યક્રમની અંદર સરકાર તરફથી વિવિધ યોજનાઓ લાવી અને ભારતને સ્વર્ણિમ ભારત બનાવો, ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવા માટે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનું સપનું છે એના ઉપર કામ કરી રહ્યા છે. ત્યારે રિપબ્લિકન પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ માનનીય રામદાસ આઠવલે સાહેબ પણ કેન્દ્રમાં મંત્રી હોય, અમે એમની પાર્ટીના ગુજરાતની અંદર પણ એક 75મા વર્ષની ઉજવણી નિમિત્તે કે ભાઈ આપણે જે અલગ અલગ સમાજોની વચ્ચે ભેદભાવ છે, એક બીજા પ્રત્યે રાગ દ્વેષ અને ઈર્ષાની લાગણીઓ એ બધું હટાવી અને ભાઈચારો કેળવાય. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે જે સંવિધાનની અંદર સમતામૂલક સમાજની સ્થાપના માટે બાબા સાહેબનું જે સ્વપ્ન હતું એ સ્વપ્નને પૂર્ણ કરવા માટે ગુજરાતના દરેક જિલ્લાની અંદર અમે સદભાવના સંમેલનના નામથી કાર્યક્રમો કરી રહ્યા છીએ અને ભારતનું એ રીતે આઝાદીનું 75મી વર્ષ અમે આરપીઆઈ તરફથી ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ. અને કાર્યક્રમના ભાગરૂપે માન્ય રામદાસ આઠવલે સાહેબ અહીંયા પધાર્યા છે અને જયંતિભાઈ ઘણા ઈચ્છા હતી કે કાર્યક્રમ રાપરની અંદર થાય. એમની ઈચ્છા મુજબ એમની ઈચ્છા આજે પરિપૂર્ણ થઈ છે. આજના કાર્યક્રમની અંદર ખાસ અમારા બાબુભાઈ રાકાણી કે જેઓ ગુજરાતના પ્રધાનમંત્રી છે, રાપર તાલુકાના છે, સલારી ગામના છે, બધા આપણે સાથે ઓળખતા હશે. હરેશભાઈ રાઠોડ, અશોકભાઈ રાઠોડ એમના ભત્રીજા છે. એ બાબુભાઈ રાકાણી એમના પત્નીનું અવસાન હજુ હમણાં થોડા 20-25 દિવસ પહેલા જ થયું છે. એમ છતાં સલગ બે વખતે અહીંયા આવ્યા. છેલ્લા 3 દિવસથી રાપર રોકાયેલા છે. અનેક ગામડાઓમાં પોતે ગયા, ઘરે ઘરે જઈને એમનો સંદેશો પૂરો પાડ્યો છે. બાબુભાઈ રાકાણી અત્યારે કુબેરનગરની અંદર એક મોટું સમાજવાડી જેવો હોલ બનાવી રહ્યા છે અને જે હોલને એમની પત્ની ભજીબેન બાબુભાઈ રાકાણીના નામથી એ હોલ બનાવવાના છે. અને હોલ કોઈ પણ સમાજ, એવું નહીં કે ફક્ત પોતે દલિત સમાજના દલિત સમાજના, પણ તમામ સમાજને નિઃશુલ્ક કોઈ પણ લગ્ન હોય, સગાઈ હોય, કોઈ પણ પ્રસંગ હોય એ દરેક પ્રસંગે ફ્રી આપશે અને એનું ઉદઘાટન પણ એમની ઈચ્છા છે કે માન્ય રામદાસ આઠવલે સાહેબ દ્વારા થાય. તો આજે આપ સૌ કાર્યક્રમમાં પધાર્યા છો. આજે અહીંયા ખાસ કાર્યક્રમની અંદર અમારા ઉગાભાઈ મેળા જે મારા પહેલા પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ હતા અને સૌરાષ્ટ્રના ખૂબ ભૂખ લાડીના નેતા હતા, એમના ભાઈ અને ખૂબ જ ગુજરાતના લોકપ્રિય ગાયક કલાકાર ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના ભજનોમાં જેમની ખૂબ ખ્યાતિ છે એવા સ્વપ્નાબેન દાફલા પડી ગયા છે. જુનાગઢથી અમારા પ્રવીણભાઈ મહેડા પણ જિલ્લા પ્રમુખ સ્વપ્નાબેન દાફલાનું દલિતો કે રાજા 6.5 કરોડ લોકો જોયેલું હોય એવા સ્વપ્નાબેન દાફલા આજે આપ સૌને આ કાર્યક્રમની અંદર બાબા સાહેબના ગીતો રજૂ કર્યા છે. હવે હું વધુ ના બોલતા આપણે જેમની સવારથી રાહ જોઈ રહ્યા છે માન્ય રામદાસ આઠવલે સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ 2 શબ્દો કહેશે.
लाइव चालू चाहिए थोड़े भाई અને બહેનો, પ્રથમે બાબા સાહેબ આંબેડકરના પ્રણામ કરું છું. आज मेरा बहुत ही खुश है मन, आज मेरा बहुत ही खुश है मन, क्योंकि रापर में हो रहा है सद्भावना सम्मेलन. मुझे नहीं चाहिए किसी का भी धन, मुझे नहीं चाहिए किसी का भी धन, कच्चे के विकास का नजदीक आ गया है क्षण, इसलिए मेरा खुश है मन. जय भीम बोलो, जय भीम बोलो और दलितों के दुश्मनों का पोल खोलो. जय भीम बोलो और दलितों के दुश्मनों का पोल खोलो. जय भारत बोलो और पाकिस्तान का पोल खोलो. जय भीम बोलो और पाकिस्तान का पोल खोलो. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद. रापर का आज का दिन मुझे हमेशा रहेगा याद. भारत देश जिंदाबाद, भारत देश जिंदाबाद. चाइना को करो तुम बर्बाद. तो आज यहाँ सद्भावना सम्मेलन हो रहा है. अशोक भट्टी यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं. उनके अध्यक्षता में यहाँ ये सम्मेलन हो रहा है. जतीन भुट्टा जी जो गुजरात के आरटीआई के प्रभारी हैं, लीलाबेन वाघेला जी महिला विंग के अध्यक्षा हैं, शंकर भाई डुंगरिया जी कच्चे के रहने वाले हैं लेकिन अहमदाबाद में रहते हैं और हमारे पीछे हमेशा मार्गदर्शन करते करते हमारे साथ हमेशा रहे हैं. बाबू भाई राकानी जो रापर तालुका के ही रहने वाले हैं, रिपब्लिकन पार्टी में बहुत ही एक्टिवली काम करते थे उम्र होने के बावजूद भी. दूसरे हमारे अशोक राठौड़ जी हैं जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम का अच्छा आयोजन किया है. जयंती भाई गड़ा, मतलब मुंबई में जो आदमी बहुत ही बड़ा, मुंबई में जो आदमी बहुत ही बड़ा, उनका नाम है जयंती भाई गड़ा. वो कच्चे के रहने वाले हैं, बचाव के रहने वाले हैं और रिपब्लिकन पार्टी के गुजराती विंग के मुंबई के अध्यक्ष भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और वो भी आज यहाँ मौजूद हैं. कांति भाई सोलंकी, वीरू भाई भाटिया, अर्जुन भाई सोलंकी, मेघजी भाई गोयल, देवजी हिरानी, प्रवीण मेहरा, क्या हमारे नाजुकराव खांडेकर है, राजेश गोयल है, हरीश राठौड़, शांतिबाई जैन,
और हमारी शोभना बेन जो उगाबाई मेहरा जी आखिर तक रिपब्लिकन रहे और रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत कराने के लिए पूरे सौराष्ट्र में घूमते थे। मेरे साथ भी कई साल तक वो रहे और शोभाबेन एक अच्छी बड़ी गायिका है और आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। तो सद्भावना सम्मेलन जो है ये सद्भावना निर्माण करनी है। समाज में जो विषमता है इस विषमता को खत्म करना है। मन का जो अहंकार है उस अहंकार को खत्म करना है और अपनी भावना हमेशा सद्भावना होनी चाहिए। अपनी भावना दूर भावना नहीं होनी चाहिए। समाज को जोड़ने का काम हम सब लोगों ने करना चाहिए। दलित पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ दलित पैंथर ये संगठन ने आवाज उठाया था। दलित पैंथर संगठन पूरे देश भर में काम करता था। गुजरात में भी रमेश चंद्र परमार जी के नेतृत्व में गुजरात में भी दलित पैंथर का मूवमेंट, दलित पैंथर्स ऑफ इंडिया का मूवमेंट बहुत ही ताकतवर यहाँ रहा है और दलित पैंथर का मूवमेंट अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम करता था। दलित पैंथर का मूवमेंट सबको न्याय देने की बात करता था। दलित पैंथर का मूवमेंट अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता था। दलित पैंथर का मूवमेंट समाज की विषमता खत्म करने का काम करता था। समाज में जो जाति व्यवस्था है जाति व्यवस्था को तोड़ने का काम, जाति व्यवस्था को खत्म करने का काम, जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम। जिस जाति व्यवस्था ने समाज में बहुत बड़ा मतलब आपस में मतभेद निर्माण किया, समाज अलग अलग तरीके से अलग अलग दिशा से चलने लगा। अलग अलग दिशा से समाज चलने से अंग्रेजों ने 150 साल तक यह राज किया। अपने देश में फ्रेंच आए, पोर्तुगीज आए, डच आए और अपने देश को लूटने का काम इन लोगों ने किया। हम अगर एक होते थे तो इसी तरह ऐसा नहीं होता था। अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ता था बहुत जल्दी। लेकिन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चला। देश के आजादी का आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला। बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में दलित मुक्ति का आंदोलन तो चला ही चला। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी देश की आजादी को पूरा सपोर्ट करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करते करते प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नाम का प्रबंध उन्होंने लिखा था। बाबा साहब ने अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शिक्षा ली थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी गुजरात के बड़ौदा में सयाजी महाराज गायकवाड़ के संस्थान में नौकरी करने के लिए आई थे। लेकिन वहां बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत ही अच्छा अनुभव आया नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान होता रहा। कदम कदम पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान होता रहा। जाति के नाम पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान होता रहा। और इसीलिए बाबा साहब ने सोचा कि अगर मैं इतनी पढ़ाई करके आया हूं और मैं इतनी पढ़ाई करके आने के बावजूद भी अगर मेरे बारे में इसी तरह का फाइल फेंकने का काम होता है, मुझे कोई स्पर्श करने के लिए तैयार नहीं है, वहीं से नौकरी पर रहने से कोई फायदा नहीं है। इस नौकरी पर लात मारकर बाबा साहब अम्बेडकर जी इस व्यवस्था को लात मारने के लिए नौकरी छोड़कर चले आए और वडोदरा में सयाजी बाग है, वहां एक पेड़ के नीचे आकर बाबा साहब अम्बेडकर रोने लगे कि मेरे समाज का क्या होगा। मेरी अगर ऐसी हालत है तो मेरे गांव के समाज की क्या हालत होगी। गांव के बाहर रहने वाला अछूत हमें अनटचेबल समझते हैं, वो लोग हमें अनटचेबल समझते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा सोचे, जो लोग हमें अनटचेबल समझते हैं उनको हम भी अनटचेबल समझे,
लेकिन बाबा साहब के मंजूर नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर समाज को जोड़ने की भूमिका रखते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी समाज को एक साथ लाने की कोशिश करते रहे। भारत अपने बाबा साहब ने बताया कि अपना जो भाषा है, अपना गांव है, अपना धर्म है, जात है, इसे अपना देश बहुत बड़ा है। भारत देश बहुत बड़ा है और भारत की आजादी को 75 साल पूरे हो रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश के मंत्रिमंडल में रहे। बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर रहे, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर रहे, लेबर मिनिस्टर रहे और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ा काम किया है। नदी जोड़ने का ऐलान बाबा साहब ने किया था। जो बाढ़ आती है, इस बाढ़ को रोकने के लिए नदी जोड़ना चाहिए। जिस तरह आदमी से आदमी को जोड़ना चाहिए, उसी तरह नदी से अगर नदी को हम जोड़ते हैं तो जहाँ ज्यादा पानी आता है वो पानी दूसरे नदी में जाएगा जहाँ कम पानी आता है और बाढ़ से होने वाला नुकसान नहीं होगा। जो पानी बर्बाद हो जाता है वो पानी बर्बाद नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत ही, अगर ऐसे डैम तैयार होते हैं तो उस डैम के माध्यम से बिजली तैयार हो सकती है। इस डैम के माध्यम से पीने के पानी की समस्या दूर हो सकती है। डैम के माध्यम से जानवरों की पानी की समस्या हल हो सकती है। मतलब डैम के कारण जो एग्रीकल्चर है, इस एग्रीकल्चर को पानी मिल सकता है, खेती को पानी मिल सकता है। इस तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे और दलितों के उत्थान के लिए बाबा साहब ने बहुत बड़ा आवाज उठाया। समाज में सद्भावना निर्माण करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जिंदगी भर संघर्ष करते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जी समाज को जोड़ने के लिए काम करते रहे और आज हमारे समाज के कुछ लोग रिजर्वेशन के माध्यम से कोई मंत्री बन रहे, कोई एमपी बन रहे, कोई एमएलए बन रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी की याद सब लोग करते हैं। सभी पार्टियां बाबा साहब का नाम लेती है। नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब का नाम लेते हैं, उनके संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं। दलितों के आरक्षण में कोई धक्का नहीं लगेगा ये वो बताते हैं और नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बहुत अच्छी बात बताते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में वो बहुत अच्छी बात बताते हैं। गौतम बुद्ध की उनका जो वडनेर गांव है, क्या वडनगर ना, उनका जो वडनगर गांव है अपना मेहसाना में, वहां मतलब जो ओएन संघ नाम के जो चाइना के भिक्खू थे, बौद्ध भिक्खू थे, वो भिक्खू मतलब उधर आए थे। उनके गांव में बुद्धिस्ट ट्रेनिंग सेंटर था और इसी तरह मतलब वो बुद्ध को भी अच्छी तरह मानते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनके बंगले के बाहर बुद्ध की मूर्ति थी। गांधीनगर में अगर आप जाते हैं तो वहां भी मतलब मंत्रालय में एंट्री करते वक्त वहां बुद्ध की मूर्ति नजर आती है। तो कहने का मतलब इतना है कि पूरा देश, पूरा दुनिया बुद्ध को मानती है और बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी सब लोग मानते हैं। तो इसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक बहुत ही बड़ा कर्तव्य रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलितों की मुक्ति की लड़ाई की शुरुआत की थी और दलितों को न्याय देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी हमेशा आवाज उठाते रहे, संघर्ष करते रहे, किताब लिखते रहे, आर्टिकल लिखते रहे, जवाब देते रहे और बाबा साहब अम्बेडकर जी इसी तरह हमारे मसीहा है और उस बाबा साहब अम्बेडकर जी का आदर्श लेकर हमारी रिपब्लिकन पार्टी काम कर रही है और आज यहाँ हमारे रापर तालुका गुर्जर मेघवाल समाज, अखिल कच्छ समस्त मेघवंशी गुर्जर समाज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलित विकास ट्रस्ट, जय भीम युवा ग्रुप, वागड़ ओबीसी गुर्जर मेघवाल समाज सुधारणा संगठन, भीम शक्ति युवा ग्रुप, जय भीम सेवा समिति, भीम शक्ति युवा ग्रुप, गजानंद गुर्जर मेघवाल समाज, इन्हीं सभी संगठनों की तरफ से आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया है। इसके पहले शायद मैं 10 साल पहले, कितने साल हो गए? मैं इधर आया था
15-20 साल हो गए टाउन हॉल का उद्घाटन नहीं हुआ था। अच्छा, जहाँ टाउन हॉल का उद्घाटन नहीं हुआ था तभी मैं आया था। जब भूकंप हुआ था तो भूकंप के टाइम पर भी मैं बहुत सारे गांव में इधर आया था। यहाँ से पाकिस्तान के बॉर्डर बहुत नजदीक है और भूकंप के टाइम पर भी मैं इधर आया था। उसके पहले रापर में अपने सभी समाज की तरफ से एक सम्मेलन हुआ था और बहुत भीड़ में उस सम्मेलन हुआ था। तो आज रापर में आने का मौका मिला है। आने के लिए बहुत देर हो गई। सुबह 11 बजे का टाइम था और आप सोच रहे होंगे कि सुबह 11 बजे था कि रात का 11 बजे था। तो सुबह 11 में हमारा फ्लाइट सुबह 8:30 का था, तो हम इधर 10 बजे के पहले आने वाले थे और एयरपोर्ट से हमने तय किया था कि इधर डायरेक्ट आना है। 11-11:30 तक हम इधर आने वाले थे, लेकिन फ्लाइट अचानक 12:50 का हो गया। यहाँ पहुंचने के लिए हमको 2:30 बज गए और इधर आने के लिए भी 1.5-पौने 2 घंटा हमें लग गए। इसीलिए आप लोगों को भारी इंतजार करना पड़ा। लेकिन आज सद्भावना सम्मेलन जो हो रहा है एक बहुत बड़ी बात है। हम सद्भावना की बात करते हैं। देश के आजादी का अमृत महोत्सव जो है, ये महोत्सव हम मना रहे हैं और इस अवसर पर आज यहाँ सद्भावना सम्मेलन हो रहा है। इसको एक अलग अर्थ है और इसीलिए मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप सब लोग आप इधर आए, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और हम सब लोग मिलकर सद्भावना को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आखिर में इतना ही बताना चाहता हूँ कि उंगली कटवाने से शहीद नहीं हुआ करते, उंगली कटवाने से शहीद नहीं हुआ करते, उसके लिए सर कटवानी पड़ते हैं। उंगली कटवाने से शहीद नहीं हुआ करते, उसके लिए सर कटवानी पड़ते हैं। इस देश में रहने वाले दलितों के दुश्मनों, इस देश में रहने वाले दलितों के दुश्मनों, या रहना है तो संभाल के रहो या हम लोग रहते हैं। जय भीम, जय भारत, जय गुजरात, जय कच्छ। मुझे चढ़ गया लीला रंग रंग, मुझे चढ़ गया लीला मुझे चढ़ गया लीला रंग रंग, मुझे चढ़ गया लीला। ये
Leon.